Assalamu alaikum. So today we are going to talk about the management of gallstone disease. Now we know that gallstones are the most common cause of presentation to surgical wards, and cholecystectomy is the most common elective surgical procedure in the world. When we talk about gallstone disease, what does the word gallstone mean and what is gallstone disease? Gallstones are when there is presence of stones in the gallbladder. But it is known as the gallstone disease when it's present in the gallbladder or in the extracholecystic area in the common bile duct or in the small intestine. It causes symptoms and complications. So once there are symptoms and complications, then it is known as gallstones disease. So we know there are two different types of gallstones. There are cholesterol stones, there are pigment stones, and then there are mixed stones. The most common variety is the mixed stone variety, and when they are predominantly cholesterol with pigment, they are cholesterol stones. When they are predominantly pigment, then they are 20% of the lot, and they are known as pigment stones. The color is different, and if you look at closely, you would see the difference here. The difference is that these stones are faceted. Similarly, these stones are faceted, whereas these stones are more rounded in shape. Now, faceted means when the stones they rub off each other, they formed facets. They have faces of each other because of the presence of multiple stones in a closed, confined space. Now, why do gallstones form? And gallstones are pretty common, and if you do an ultrasound of the general population, about 10% of the population would have gallstones, but they are not symptomatic. Remember, presence of gallstones does not mean gallstone disease, and we treat gallstone disease, we do not treat gallstones. तो बन कैसे जाते हैं? हमें पता है कि बाइल में क्या होता है, हमें पता है बाइल का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है. The biggest component is water. Then we have bile salts, we have bilirubin, which is of course pigment. Then we have some other electrolytes. तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर क्या करता है? जब बाइल आती है, इसके अंदर स्टोर होती है, तो ये जो इसकी लाइनिंग है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को. अबाउट 10 times the concentration of bile is saturated. There is saturation which results in concentrated bile. और उसके बाद जब फैटी फूड पहुंचती है ड्यूडेनम के अंदर, वहाँ से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होती है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कॉन्सनट्रेटेड बाइल पहुंचती है ड्यूडेनम में ताकि फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे. अब बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, यहाँ पे क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है. और ये जो बिलरी वेसिकल्स होते हैं बड़े साइज़ के, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इनके साथ अगर वहाँ पे स्टेसिस होना शुरू हो जाए, अगर पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो, अगर ज़्यादा मतलब सुपर सैचुरेटेड हो, द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस इन द बाइल विच इज़ कमिंग, or the gallbladder is akinetic, or the patient is on fat free diet, is the patient is not taking anything orally, is on TPN, then this can result in supersaturation. Now these three factors, supersaturation, hypomotility and nucleation, this nucleation is because of the cholesterol crystals. Now once they all overlap, there is an increase in the supersaturation, hypomotility and nucleation. This leads to first of all biliary sludge formation, and that biliary sludge formation then leads to goons and causes stones formation. तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं? अगर आप देखें तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ते आए थे, वो पहले हम कहते थे 4F, फर्टाइल, फैटी, फेयर एंड फीमेल. तो अगर आप इसमें भी इन रिस्क फैक्टर्स में भी देखें तो फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, multiparity, fertility, alcohol intake, junk food, cirrhotic liver,
sickle cell disease, diabetes, and as well as rapid weight loss, genetic predisposition, and the oral contraceptive pills. Now, what does it tell us? It tells us that all these conditions can lead to supersaturation of bile and subsequently to gallstone formation. So, in gallstone disease, asymptomatic gallbladder stones are not technically gallstone disease, but we sometimes need to treat them. When would we need to treat asymptomatic gallstones? 1. In diabetic patients who have autonomic neuropathy and they may not have pain because even in the presence of gallstone disease because of the autonomic neuropathy. Secondly, if there is presence of stones, especially multiple stones in childbearing age of females. Why? Because in pregnancy the incidence of gallstone's disease increases and the incidence of complications also increases, and in pregnancy if the patient has gallstone disease it becomes difficult to manage those patients and they would have subsequent more morbidity and even mortality. So in asymptomatic gallbladder stones we treat once either they are diabetic or they are ladies of childbearing age with multiple stones. Then symptomatic gallbladder stones include biliary colic, acute cholecystitis, Meniere's syndrome, and the xanthogranulomatosis cholecystitis. Then extra cholecystic issues like common bile duct stones which can cause biliary colic, cholangitis, obstructive jaundice, and gallstone pancreatitis. The other complications include gallstone ileus or their presence in large inflammatory mass which can cause gastric outlet obstruction and sometimes even gallbladder cancer or biliary dyskinesia. Now जब हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉलस्टोन्स की बात करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस गॉल ब्लैडर के अंदर है जो कि कोलिसिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस गॉल ब्लैडर के बाहर हैं जो कि एक्स्ट्रा कोलिसिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं. तो गॉल ब्लैडर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इट कैन बी अ biliary colic, it can be acute or chronic cholecystitis, empyema, mucocele, and even development of a malignancy. In the bile ducts, when the stones are present, they can cause obstructive jaundice, resulting in cholangitis and pancreatitis. Or in the gut, they can cause gallstonitis. So, when somebody presents to us in emergency or in the OPD with an right upper quadrant pain, the most common differential diagnosis is 1. Gallstone disease with its related complications. It can be gastritis or duodenitis or peptic ulcer disease with their complications, acute pancreatitis, right lower lobe pneumonia, and myocardial infarction. Now you can see there is a wide variety of conditions which can present with right upper quadrant pain. तो जब भी हम किसी जगह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं, हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये पेन सोमैटिक है या ये पेन विसरल है, क्योंकि इसमें हम अगरचे हमने लिखे नहीं है मगर सोमैटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं पेन के. यहाँ पे रिब केज की पेन हो सकती है, देयर कैन बी इंजरी टू दी skin, there can be herpes zoster in the skin, there can be an infected sebaceous cyst which can cause pain, there can be a lipoma which has become tender, or there can be a fracture of rib which causes right upper quadrant pain. तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट पेन के साथ आता है तो हमने हिस्ट्री पे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये सोमैटिक पेन है या विसरल पेन है. सोमैटिक पेन और विसरल पेन में हम सबको पता है फ़र्क क्या है. सोमैटिक पेन वेल लोकलाइज्ड होती है. सोमैटिक पेन जो है वो पेशेंट जो है उसका कैरेक्टर डिफाइन करना पेशेंट के लिए आसान होता है, उसके साथ एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशंस कम होती हैं. वेराज जो विसरल पेन होती है वो इल डिफाइंड होती है, वो इतनी शार्प नहीं होती, उसका कैरेक्टर डिफाइन करना ज़रा दुश्वार होता है और उसके साथ अदर फीचर्स मौजूद होते हैं आम तौर पे, लाइक नोज़िया एंड वॉमिटिंग.
अब दूसरी अहम बात ये कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं। जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे पास आता है तो डायग्नोस करने का तरीका ये है कि हम पहले सिम्टम्स को देखते हैं, उन सिम्टम्स को उठा के हम एक सिस्टम में डालते हैं और फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस सिस्टम में क्या खराबी है। जब हम राइट अपर क्वाड्रेंट की बात करते हैं और विसरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा विस्कस क्या है, लिवर है, उसके साथ गॉल ब्लैडर है, उसके साथ एक्स्ट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स है, फिर पाइलोरस है, फिर डूडनम है, फिर राइट सुप्रारीनल है, किडनी है, हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन है, और ऊपर से अगर हम देखें तो राइट लोअर लोब है लंग की, उसके प्लूरा है, डायाफ्राम है, और इस वजह से चूँकि ये डायाफ्राम और इसकी एसोसिएशन पेरिकार्डियम और उसके साथ इवन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पेन भी हम राइट अपर क्वाड्रेंट में फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ये सारे सिम्टम्स सोच रहे हैं तो जो पेन होगी, पेन के साथ उसके एसोसिएटेड फीचर्स होंगे। अगर वो हेपेटोबिलियरी सिस्टम का है तो उसके हेपेटोबिलियरी सिस्टम के कुछ सिम्टम्स आ रहे होंगे, अगर वो अपर जीआई के है तो उसके सिम्टम्स आ रहे होंगे, अगर वो क्लोनिक है तो उसके सिम्टम्स आ रहे होंगे, अगर वो पैनक्रियाटिक है तो उसके सिम्टम्स आ रहे होंगे। सो यू कोरिलेट, ठीक है, ऑल पेन्स इन राइट अपर क्वाड्रेंट are not just because of gallstone disease, and that is why it is very important to have a proper diagnosis before you embark upon any surgical procedure. Remember, आप दुनिया की सबसे अच्छी कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं, मगर आपके पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके सिम्टम्स किसी और वजह से थे, आप उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर देंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर पेशेंट. सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू diagnose your patients properly and then devise a management plan. So somebody comes to A&E with right upper quadrant pain, उन सब के हमने ब्लड टेस्ट कराने. हमने पिछली जो टॉक थी उसमें बात की थी कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए. हमें CBC कराने चाहिए, हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराने चाहिए, हमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए. उसके साथ हम एक एब्डोमिनल एक्सरे और इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं ताकि हम एक्सक्लूड कर सकें कि कोई परफोरेशन तो नहीं है, और उस परफोरेशन होगी तो फ्री एयर अंडर डायाफ्राम आ जाएगी. इसी तरह ये चेस्ट एक्सरे और ये हमें बता देगा कि राइट लोअर लोब में कोई इशू निमोनिया वगैरह का तो नहीं है, कोई प्लूरल स्पेस का प्रॉब्लम तो नहीं है. इवन रिब केज के बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और इन पेशेंट्स की ECG करा लेना हमेशा हमेशा बेहतर है. मेक श्योर दैट you are not missing out on myocardial infarction or an ischemic heart disease. Then how do you differentiate between different gallstone complications? gallstone complications क्या हो सकती हैं? हमने क्या पहले बात की थी. cholecystic complications क्या है? biliary colic, acute cholecystitis, chronic cholecystitis, empyema, mucocele, gangrene, perforation and even carcinoma. ठीक है. एक्स्ट्रा कोलिसिस्टिक क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पैनक्रेटाइटिस, कोलेंजाइटिस एंड गॉलस्टोन आइलियस. तो अब हम इन सब के दरमियान अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हर किसी भी डिज़ीज़ की तरह जो हमारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हमारे पास क्या है, बेसिकली सबसे पहले मरीज़ से बात करें हिस्ट्री में, फिर मरीज़ की फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करें, मरीज़ को हाथ लगाएं, और फिर मरीज़ को सुई लगाएं, उसके ब्लड टेस्ट करें, उसकी दूसरी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करें. तो हमने क्या क्या कराना है? हमने कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराने, LFTs कराने, सी रिएक्टिव प्रोटीन करानी, क्लॉटिंग और अमाइलेज कराना है, क्योंकि एक मेजर इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन का. सो ब्लड में हम क्या क्या करते हैं, हम इमेजिंग में क्या क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं. तो कॉम्प्लिकेशंस हमने शुरू की थी बिलियरी कोलिक से. याद रखें, बिलियरी कोलिक इज़ अ मिसनोमर. इट डज नॉट वैक्स एंड वेन. इट इज़ present there for minutes and hours, and it is because of the gallbladder contracting on a stone in its neck on the opening of the cystic duct. इस वजह से पेन होती है. आम तौर पे ये पेन बैक पे along the 10th rib या तो रेडिएट कर रही होती है, समटाइम्स राइट शोल्डर तक जाती है, इसके साथ नोजिया वॉमिटिंग होती है. एग्जामिनेशन पे टेंडरनेस यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती. पेरिटोनिज्म के फीचर्स
नहीं होते, मर्फीज नेगेटिव होता है, पायरेक्सिया नहीं होता इन पेशेंट्स को, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट इनका नॉर्मल होता है, और इनकी जब आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वाइट सेल काउंट्स ठीक होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन ठीक होता है, LFTs भी ठीक होते हैं। तो डायग्नोसिस का मेन स्टे क्या होता है? डायग्नोसिस का मेन स्टे अल्ट्रासाउंड पे होता है, जिसको जब आप कोरिलेट करते हैं विद हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, सो देयर आर गॉल स्टोन्स विद नो इन्फ्लेमेशन एंड दीज पेशेंट्स आर हैविंग बिलियरी कोलिक, सो दीज द ट्रीटमेंट ऑफ बिलियरी कोलिक इज कोलिसिस्टेक्टमी। देन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, यूजली जब पेशेंट राइट अपर क्वाड्रेंट के साथ आता है पेन के साथ, तो जो पहला काम इमरजेंसी फिजिशियन का या जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है उसका ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये बिलियरी कोलिक है या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। क्यों डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है? कि बिलियरी कोलिक के आपने पेन रिलीव करने के बाद पेशेंट कैन ईजीली बी डिस्चार्ज होम एंड कम बैक फॉर एन इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी, वेयर एज इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यू नीड टू admit your patients and you need to treat them parenteral antibiotics and fluids etc, and you have to ensure that they do not go into further complications and your patient may require an urgent cholecystectomy in acute cholecystitis। तो जब acute के साथ आता है तो उनका constant pain होता है, ठीक है। बिलियरी कोलिक में intermittent pain होता है, इसमें constant pain होता है जो कि बैक या राइट शोल्डर पे जाता है, nausea vomiting होती है और फीवरिश होते हैं। ये पेशेंट जो है इनमें पायरेक्सिया होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। इनका राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडर होता है, इनमें पेरिटोनिज्म होती है, देयर इज गार्डिंग और देयर इज रीबाउंड टेंडरनेस। मर्फीज पॉजिटिव होता है, पायरेक्सिया होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। अब सवाल ये है कि ये क्या चीज़ होती है, पेरिटोनिज्म क्या होती है, ये गार्डिंग क्या है, ये रीबाउंड क्या है, ये राइट शोल्डर पे पेन क्यों हो रही है? राइट शोल्डर पे पेन बेसिकली इसलिए होती है कि जब इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर टच करता है डायाफ्राम को, तो डायाफ्राम के ऊपर जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसकी नर्व सप्लाई भी फ्रेनिक नर्व से आ रही है। अब फ्रेनिक का नर्व रूट क्या है? C4-5। तो C4 हम कहाँ महसूस करते हैं? एपिलेट पे, अपनी शोल्डर टिप पे। तो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रही है? कहाँ पे जो नर्व है वो इरिटेट कहाँ पे हो रही है? ऑन दी पैराइटल पेरिटोनियम ओवरलाइंग दी डायाफ्राम। लेकिन चूंकि उसकी सोमैटिक रिप्रेजेंटेशन C4 की शोल्डर टिप पे, इसलिए पेशेंट को शोल्डर टिप पेन होती है। अच्छा, पेरिटोनिज्म क्या होता है? पेरिटोनिज्म का मतलब है कि जब इन्फ्लेम्ड ऑर्गन पैराइटल पेरिटोनियम को टच करता है तब पेशेंट को पेन होती है। तो इनिशियली रिबाउंड या गार्डिंग का मतलब ये है कि अभी पैराइटल पेरिटोनियम इन्वॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जब आप दबाते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट को और वेंटियर एब्डोमिनल वॉल जाके टच करती है इन्फ्लेम्ड ऑर्गन को, तो अब पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर इरिटेशन होती है और उसके ऊपर जो ओवरलाइंग मसल्स है वो टॉट हो जाते हैं। इसको गार्डिंग कहते हैं। और इससे अगली जो स्टेज है वो रिजिडिटी है। जब इन्फ्लेम्ड ऑर्गन की कांस्टेंट टचिंग की वजह से पैराइटल पेरिटोनियम में इन्वॉल्व हो जाती है और पैराइटल पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो जो उसके ऊपर ओवरलाइंग मसल्स होते हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तब इसको कहते हैं रिजिडिटी। इट इज़ लाइक अ बोर्ड। व्हाट इज़ मर्फी साइन? मर्फी साइन का मतलब ये है कि जब आप अपना थंब प्लेस करते हैं नाइन्थ कॉस्टल मार्जिन के सामने, नाइन्थ रिब की टिप के सामने रखते हैं, दबाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि वो गहरा सांस ले। उसके गहरा सांस लेने से इन्फ्लेम्ड ऑर्गन आके जैसे ही टच करता है द टिप ऑफ द थंब, तो पेशेंट अपनी सांस रोक लेता है। ये मर्फीज पॉजिटिव है। ये सोनोग्राफिकली भी किया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है। और चूंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ये पेशेंट फेब्राइल होंगे, इनको टैकीकार्डिया होगा और इनके ब्लड टेस्ट पे WBC काउंट इनका रेज्ड होगा, विद लेफ्ट शिफ्ट न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स रेज्ड होंगे, एंड LFTs कैन बी नॉर्मल और दे कैन बी माइल्डली बड़े हो सकते हैं। एम्पाइमा क्या होता है? एम्पाइमा उस वक्त होता है जब स्टोन स्टक होता है इन द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर और जो फ्लूइड इनसाइड द गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से पस बन जाती है। सो इट इज़ एम्पाइमा गॉल ब्लैडर। द पेन वंस अगेन इज कांस्टेंट, देयर इज nausea, vomiting. These patients have high grade fever, there is tenderness, there is peritonism, Murphy's is positive, fever is positive, there is tachycardia, blood pressure may be normal or it may be decreased. These patients are in more sepsis than acute cholecystitis, of course, because there is presence of pus in the gallbladder.
इनके WC काउंट्स बड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, LFTs माइल्डली लार्ज इंक्रीज हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पे जब स्टोन मौजूद है कॉमन बाइल डक्ट में और बिलरी जो फ्लो है इनटू द ट्यूबनम उसको रोक रहा है, तो पेशेंट की हिस्ट्री येलो डिस्कलरेशन की है, वो पेल स्टूल्स हैं क्योंकि स्टर्कोबिलिन नहीं है, डार्क यूरिन है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन तो एक्सक्रीट हो रही है मगर यूरोबाइलिनोजन मौजूद नहीं है। यूजुअली पेनलेस हो सकता है, अगर स्टोन की वजह से हो तो समटाइम्स पेन हो सकती है। पेशेंट एग्जामिनेशन पे जॉन्डिस होंगे, यूजुअली नॉन टेंडर होंगे, पेरिटोनिज्म नहीं होगा, मर्फी साइंस नहीं होगा, फीवर नहीं होगा। ये उस वक्त है जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो है मगर इस पेशेंट को भी असेंडिंग कोलोनजाइटिस नहीं हुआ। और याद रखें कि अगर पेशेंट को आपने देखा है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आपने की और गॉल ब्लैडर पैल्पेबल है तो स्टोन होने का इम्कान बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी वेरी मिनिमल। इसको कहते हैं कोरवोइजियस लॉ, which is if in an obstructed jaundice patient the gallbladder is palpable, the cause is unlikely to be stones। ठीक है, तो अगर पेशेंट जॉन्डिस्ड है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, हिस्ट्री पे आपको लग रहा है और गॉल ब्लैडर पैल्पेबल है तो वो स्टोन्स की वजह होने का इम्कान कम है और दूसरे जो कॉजेज़ हैं जो ज़्यादा सिनिस्टर कॉजेज़ हैं वो हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट करा के आप देखते हैं इनके WC काउंट, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ठीक होते हैं और जो LFTs है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कल, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या है हमें पता है, टोटल बिलीरुबिन बड़ी है, कॉन्जुगेटेड ज़्यादा बड़ी है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बड़ा है, GST रेज्ड है, 5' न्यूक्लियोटाइडेज रेज्ड है और ALTs AST मिनिमली इंक्रीज हो सकते हैं और INR इन पेशेंट्स का ज़्यादा हो सकता है, इवन PT ज़्यादा हो सकता है। जब इस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर सुपरएडेड इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को होता है असेंडिंग कोलोनजाइटिस। ठीक है, और तब पेशेंट प्रेजेंट करता है क्लासिकली विद व्हाट इज नोन एज चारकोट स्ट्राइड। चारकोट स्ट्राइड में क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है विच इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वैक्सिंग एंड वेनिंग, इट इज नॉट इंटरमिटेंट, इट इज कांस्टेंट। देयर इज जॉन्डिस एंड देयर इज फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स। ठीक है, याद रखें 3 बड़े कॉजेज जब पेशेंट्स को फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स होते हैं, 3 बड़े कॉजेज में एक असेंडिंग कोलोनजाइटिस है, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और एक मलेरिया। ठीक है, 3 बड़े कॉजेज। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं असेंडिंग कोलोनजाइटिस में, तो इसमें फीवर विद राइगर्स एंड चिल है, जॉन्डिस है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और इस ट्रायड को हम कहते हैं चारकोट स्ट्राइड। एग्जामिनेशन पे क्या होगा, ऑफ कोर्स जॉन्डिस होगा, टेंडर अपर क्वाड्रेंट होगा, पेरिटोनिज्म होगा, स्पाइकिंग हाइपरक्सिया होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा और ये पेशेंट शॉक में जा सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ दिस। वाइट सेल काउंट सी रिएक्टिव प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा रेज्ड होता है, LFTs में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स आते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड, गामा GT रेज्ड, ALT/AST मिनिमली रेज्ड, INR इंक्रीज हो सकता है। Then another important reason of right upper quadrant pain is acute pancreatitis and it is also an extra cholecystic complication of gallstone. So it is part of the gallstone disease. Patient presents with severe abdominal pain which is boring directly into the back. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पेनक्रियास एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन और जो नर्व प्लेक्सस है उनके साथ डायरेक्टली उनके ऊपर बैठा हुआ है, तो जब इन्फ्लेमेशन होती है तो नर्व्स की लगातार वहाँ पे इरिटेशन हो रही होती है और पेशेंट को सीवियर बैक पेन होती है और ये आगे होके बैठते हैं। वो आपको बताते हैं कि जब हम लेटते हैं तो दर्द बढ़ जाती है, बैठने से दर्द कम हो जाती है और इनको प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होती है क्योंकि स्टमक बेड के अंदर है, उस वजह से वहाँ पे वॉमिटिंग ज़्यादा होती है इन पेशेंट्स को। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? कहते ये हैं कि अगर 3 में से 2 चीज़ें मौजूद हैं तो फिर पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। एक ये जो क्लासिकल हिस्ट्री जिसकी हमने बात की, दूसरा इसका एमिलेज और लाइपेज का इंक्रीज़ होना सीरम में, और तीसरी अहम बात ये है इमेजिंग पे इसको कंफर्म होना। और हमारी इमेजिंग ऑफ चॉइस क्या है? हमने इमेजिंग के लेक्चर में इसकी बात की थी, दैट इज़ अ CT स्कैन विद कंट्रास्ट। एग्जामिनेशन पे टेंडर अपर एब्डोमेन होता है, देयर कैन बी अपर एब्डोमिनल और जनरलाइज्ड पेरिटोनिज्म
यूजली ए पर एक्सेल होते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में अगर ये इन्फेक्ट हो जाए तो इनको फीवर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल भी हो सकता है और ये शॉक में भी हो सकते हैं। इनका WBC काउंट बड़ा होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बड़े होंगे। कल हमने बात की थी रेंसन्स क्राइटेरिया के। रेंसन्स क्राइटेरिया प्रोग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए हमने पहले बात की, वो अमाइलेज और लाइपेज के लेवल्स हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर हम एमाइलेज और लाइपेज को नहीं रखते। ठीक है, इन पेशेंट्स का INR APTT बढ़ा हो सकता है एंड समटाइम्स दे कैन इवन गो इनटू DIC, स्पेशली व्हेन देयर इज हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस। फिर एक और बड़ी अहम एक्स्ट्रा कोलिसिस्टिक जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज गॉलस्टोन आइलेस, और इनमें कहते हैं 4 कार्डिनल फीचर्स हैं ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। पहली बात तो ये सवाल ये है कि स्टोन, CBD का स्टोन कैसे पहुंच जाएगा स्मॉल बावल में, और पहुंचने के बाद उसमें रुकावट कैसे डालेगा। तो ये समझने की बात ये है कि ये स्टोन नॉर्मल रास्ते से स्मॉल बावल में नहीं गया। स्टोन का साइज़ इतना बड़ा है कि उसने इरोड करके डूडेनम की वॉल को एक फिस्चुला बनाया है बिटवीन द गॉल ब्लैडर और एंड द डूडेनम, और ये मरीजी सिंड्रोम जो कहलाता है, और वहाँ से जो स्टोन होता है वो स्मॉल बॉल में चला जाता है, और फिर पेरिस्टालसिस का नीचे जाके जो नैरोएस्ट पोर्शन है, 2 नैरो एरियाज़ हैं। एक वो नैरो एरिया है जहाँ पे विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट लगती थी 2 फीट प्रॉक्सिमल टू द आइलियोसिकल जंक्शन, अगर वहाँ से गुजर जाए तो फिर ये आइलियोसिकल जंक्शन पे जाके फंस जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि लिखा हुआ है 4 कार्डिनल फीचर्स के हैं स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के। 4 कार्डिनल फीचर्स हैं: वॉमिटिंग, absolute constipation, abdominal distension and vomiting, abdominal distension, absolute constipation and abdominal pain। जब आप इन पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, इनका डिस्टेंडेड टिम्पैनेटिक एब्डोमेन होता है और या हाइपर एक्टिव साउंड्स हैं जब इनिशियल स्टेजेस है ऑब्स्ट्रक्शन की, और गट कोशिश करिए कि किसी तरह वो मिल्क करके चलाना शुरू कर दे अपने आप को, या जब ज़्यादा देर हो गई है तो फिर टिंकलिंग साउंड्स होंगी। ठीक है, वाइट सेल काउंट्स और दूसरी चीज़ें इनिशियली अभी इसमें रेज नहीं होती। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं, हमने अभी बात की, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम एब्डोमिनल एक्सरेज करा के देख सकते हैं। 7 to 10% गॉलस्टोन्स रेडियोपेक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट। इरेक्ट चेस्ट एक्सरे हमने कराया है टू एक्सक्लूड परफोरेशन, जिसमें फ्री एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ सकती है। परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की वजह से कोई फ्री एयर नहीं होती अनलेस देयर इज़ अ फिस्चुला बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द बिलियरी चैनल्स। ECG हम किस लिए करा रहे हैं? टू एक्सक्लूड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये हमने पहले भी बात कर ली है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड इजीली अवेलेबल है, कोई इसमें किसी किस्म की रेडियोलॉजिकल वो पेशेंट को रिस्क नहीं है रेडिएशन का। इसका सिर्फ ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग थोड़ी ये है कि इट इज़ एज गुड और एज बैड एज द ऑपरेटर इज। इट्स अ वेरी ऑपरेटर डिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। सो अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या क्या पता लग सकता है? गॉलस्टोन्स हैं कि नहीं, गॉल ब्लैडर की वॉल की थिकनेस कितनी है। हमने उस दिन क्या बात की थी इमेजिंग में कि नॉर्मली 2 मिलीमीटर तक होती है, जब 3 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा थिक हो जाए वॉल तो इसका मतलब है वो इन्फ्लेम्ड है, जब पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेम्ड है वो गॉल ब्लैडर। फिर ये हमें बिलियरी ट्री का साइज़ बता सकता है। नॉर्मली राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हमने कहा था 2 से 3 मिलीमीटर की होती हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो 8 मिलीमीटर तक नॉर्मल है, और 8 मिलीमीटर से ज़्यादा जब उसका डायमीटर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंडेड हो गई है। एंड समटाइम्स कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स कैन बी सीन, लेकिन वो दुश्वार इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि एक सुपराड्यूडनल पोर्शन है, एक रीट्रोड्यूडनल पोर्शन है, एक रीट्रोपेनक्रियाटिक पोर्शन है, और फिर एक इंट्राड्यूडनल पोर्शन है। अब गैस जो है चूँकि उसमें से साउंड वेव्स अच्छी तरह से नहीं गुजरती, तो जब किसी चीज़ के सामने गैस फिल्ड ऑर्गन है, चाहे वो स्टमक है चाहे वो स्मॉल बॉल है, तो फिर उसके थ्रू आप अल्ट्रासोनिक इमेजेस को अच्छी तरह से नहीं देख सकते। MRCP कराया जा सकता है, ये विजुलाइज करता है बिलियरी ट्री को एक्यूरेटली।
It is diagnostic, but it is non-invasive. It can tell us about biliary dilatation, it can tell us about stones, but we can't do anything else. ये डायग्नोस्टिक मोडालिटी बहुत अच्छी है. ERCP में हम दोनों काम कर सकते हैं. ये हमें डायग्नोसिस भी दे सकता है और हम इसको थेराप्यूटिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये इन्वेसिव है. वी नीड टू पुट इन एन एंडोस्कोप साइड विंग, फिर उसके बाद कैनुलेट करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रास्ट दे के देखते हैं, और अगर कुछ नज़र आता है हम स्टोन्स को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, हम स्फिंक्ट्रोटमी कर सकते हैं, हम स्टेंट्स प्लेस कर सकते हैं. लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं क्योंकि ये इन्वेसिव है. पेनकिटाइटिस होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है. इवन ड्यूडनल परफोरेशंस भी कर सकते हैं, स्पेशली जब डिफ़िकल्ट कैनुलेशन होती है. आप मेजर एम्पुला को कैनुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वजह से ड्यूडनल परफोरेशन भी हो सकती है. फिर उसके बाद है PTC, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी. इट इज़ टू डिक्रीज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिलियरी ट्री. उसको डिकम्प्रेस करने के अंदर फ़ायदेमंद है, स्पेशली जब ERCP फेल हो जाए, और ये प्रॉक्सिमल के लिए कामयाब है. और लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इन्वेसिव है, ERCP से भी ज़्यादा इन्वेसिव इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि ये लिवर के थ्रू हमारी नीडल जाती है. इट कैन पंक्चर एनीथिंग, इट कैन कॉज ब्लीडिंग, और हम अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस में करते हैं, बट स्टिल वी कैन एंटर अ बिलियरी इंस्टेड ऑफ अ बिलियरी चैनल. वी कैन go inside or invade a vascular area and can result in bleeding. CT स्कैन आमतौर पे गॉल ब्लैडर के लिए फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मगर पेनकिटाइटिस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड कोलेसिस्टाइटिस की बात हो रही होती है, या परफोरेशन का सोच रहे होते हैं, या जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता. सो इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ an ultrasound which is showing these multiple stones. These are their acoustic shadows. The wall is within normal limits, and this is the fluid inside the gallbladder. So this is gallstones with no complications here. Similarly, this CT scan is also showing gallstones within the lumen, though it is not an investigation of choice to look at the gallstones. सो बिलियरी कॉलिक में हमने बात की थी दर्द क्यों होती है, क्योंकि सिस्टिक डक्ट के मुंह पे जाके बैठा होता है पत्थर. जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता, उसकी वजह से पेन होती है, और फिर पेन होती है, पेन सबसाइड कर जाती है जब पत्थर अपनी जगह से हट जाता है. अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गॉलस्टोन को कंफर्म करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं. अगर पेशेंट ने ज़्यादा वॉमिटिंग की है उसको फ्लूइड रिससिटेट देते हैं, और जब ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं द पेशेंट कैन गो होम एंड हैव एन इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी. एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कब होता है? जब सिस्टिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. उस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर है उसका इम्कान कम है, बाइल और कंसनट्रेट हो जाती है. इनिशियली केमिकल इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर उसके बाद उसके ऊपर सुपर एडेड ऑर्गेनिजम्स आ जाए, स्पेशली ये जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो देन दैट कैन कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस लाइक एम्पाइमा. इसका डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन कैसे करते हैं? वंस अगेन वी डू अ अल्ट्रासाउंड जिस पे वॉल थिकनेस आती है और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड आता है. कॉम्प्लिकेशंस क्या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की? एम्पाइमा है, गैंग्रीन है, परफोरेशन है, एंड म्यूकोसील है. ठीक है, म्यूकोसील में ऑब्स्ट्रक्शन होती है लेकिन सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं होती. तो गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है लेकिन उसके अंदर म्यूकस फिल्ड होता है पस फिल्ड होने की वजह. ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियली हम एडमिट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, उसके बाद आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, और मोर देन 95% जो पेशेंट्स हैं वो इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से सेटल हो जाते हैं. अगर ये सेटल नहीं हो रहे और पेशेंट को या एम्पाइमा बन गया है, या गैंग्रीन हो गई है, या कोई परफोरेशन हो गई जिस वजह से पेरिटोनाइटिस है, फिर इन पेशेंट्स के लिए आपको कोई इन्वेजन करनी पड़ सकती है. यू मे हैव टू गो इन टू डू सर्जरी. अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो आप परक्यूटेनियस ड्रेनेजेस भी कर सकते हैं इन पेशेंट के. तो डायग्नोसिस इमेजिंग पे बेस करता है. ये अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हैं. लुक एट दिस थिक वॉल which is much more than 2 to 3 millimeter, and you can see this streak of fluid. This black thing is a streak of fluid in the pericholecystic area. So this patient has both pericholecystic fluid and thick walled, and once you place the probe of the ultrasound on the patient's inflamed gallbladder, you can also elicit a sonographic Murphy's sign
जिसकी हमने पहले बात की थी। सीक्वली क्या क्या है? सीक्वली ये है कि एक तो ये हो सकता है कि पेशेंट की जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। एक ये हो सकता है कि बार बार पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, कंजर्वेटिवली वो बेहतर हो जाता है एंटीबायोटिक्स के बाद, और पेशेंट को क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है जिसमें गॉल ब्लैडर शंकन और के थिक वॉल्ड हो जाता है, या जो इन्फ्लेमेशन है वो सीवियर होके एम्पाइमा बन जाता है, या गैंग्रीन और एब्सेस बन सकती है, या इन पेशेंट्स में म्यूकोसिल बन सकती है। अब करना क्या इसकी, इन सारी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट भी कोलिसिस्टेक्टमी। सो वेरी ब्रीफली समथिंग अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हमें पता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की जो अभी हम बात करें गॉल स्टोन डिजीज़ में, वो स्टोन की वजह से, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मिल सकते हैं, साथ सीबीडी की डायलेटेशन का पता लग जाता है। सीबीडी में स्टोन ढूंढ सकते हैं बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। एमआरसीपी हमें डेफिनेटली बता सकता है कि सीबीडी के अंदर स्टोन है कि नहीं, लेकिन एमआरसीपी हम कब कराते हैं? जब एलएफटीज ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोई बिल्ली डायलेटेशन नहीं हो रही, या एलएफटीज नॉर्मल है लेकिन अल्ट्रासाउंड बिल्ली डायलेटेशन करा रहा है, तो एमआरसीपी इस डायग्नोस्टिक डायलेमा को हमारे दूर कर सकता है। ईआरसीपी कब करते हैं? जब कन्फर्म्ड स्टोन होता है सीबीडी में, अल्ट्रासाउंड पे या एमआरसीपी पे, तो फिर हम ईआरसीपी के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन भी कर सकता है मैं स्टोन की स्फिंक्ट्रोटमी करने के बाद। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो काम है वो ये है कि आप बिलियरी ट्री को अनऑब्स्ट्रक्ट करें, उसकी बिलियरी ड्रेनेज को फ्री कर दें। जब बिलियरी ड्रेनेज शुरू हो जाएगी तो जो जॉन्डिस के साथ सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएंगी, और फिर अब हम इलेक्टिव सर्जरी की बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमने ईआरसीपी करना है, जब हमें पता है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो ये पेशेंट जो है इनको असेंडिंग कोलिंजाइटिस हो सकता है, जिसको देखने की ज़रूरत है, ट्रीट करने की ज़रूरत है अगर ये डेवलप हो जाए। तो ये कब होता है? जब सीबीडी ऑब्स्ट्रक्ट है और उसके ऊपर सुपरएडेड इन्फेक्शन हो गया। ट्रीटमेंट वंस अगेन, जैसे हमने पता है कि एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के साथ फ्लूइड रिससिटेशन है, आईवी फ्लूइड्स हैं, फोली कैथेटर डालते हैं ताकि हमें इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड का पता लग सके। आईवी एंटीबायोटिक्स चाहिए। इन पेशेंट्स को हमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में या इंटेंसिव थेरेपी यूनिट्स में रखना चाहिए, स्पेशली जिनके अंदर सेप्टिक शॉक होने का इम्कान हो या डेवलप हो गया। पस को ड्रेन करने की ज़रूरत है इन असेंडिंग कोलिंजाइटिस। तो या तो अगर पॉसिबल है तो अर्जेंट ईआरसीपी कर दें या अर्जेंट पीटीसी कर दें इफ़ इट इज़ अवेलेबल। तो ये अर्जेंटली करके किसी तरह से ड्रेनेज कर देनी चाहिए। जो बिलियरी चैनल है इनको अनऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो उसके बाद वो सेटल होने का इम्कान ज़्यादा है। एज यू कैन सी हेयर, वंस दिस स्टोन इज स्टक हेयर एंड वी डू नॉट डू समथिंग टू डू दैट, तो हम असेंडिंग कोलिंजाइटिस को प्रॉपरली ट्रीट करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। सो जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, पेरेंट जॉन्डिस हुआ है, हमें पता है कि 80% में डिस्टेंडेड नहीं है। गॉल ब्लैडर डिस्टेंड कब होता है? जब हमने कहा था कि स्टोन से उसका ताल्लुक नहीं है। लिवर को देखने की ज़रूरत है कि वो इनलाज हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जब असेंडिंग कोलिंजाइटिस हो जाएगा तो चारकोट स्ट्राइड होगा, ठीक है। पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद फीवर इन राइगर्स, एंड देयर कैन ऑल्सो बी रेनॉल्ड्स पेंटेट। जब असेंडिंग कोलिंजाइटिस लीड्स टू सेप्टिक शॉक, along with these three you would have also altered mental state and septic shock of the patient. Diagnosis once again, फर्स्ट लाइन इमेजिंग अल्ट्रासाउंड है, उसमें सीबीडी को देखते हैं, सीबीडी का साइज़ देखते हैं, क्या स्टोन मिल जाए तो उसको देख सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है या उस पर कुछ पता नहीं लगता तो फिर हम कंट्रास्ट इनहांस सीटी करके देखते हैं कि उसमें हमें स्टोन मिल जाए या उसमें डिस्टेंडेड डायलेटेड कॉमन बाइल डक्ट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं या ईआरसीपी कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वंस अगेन हमें बताती है कि स्टोन कहाँ पे है, डायलिटेशन हुई है कि नहीं, और ईआरसीपी हमने उस वक्त भी बात की थी, इट कैन बी थेराप्यूटिक एज वेल। सो कोलिडोकोलिथाइसिस अगर है
चाहे वो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर रही है या असेंडिंग कोलिंजाइटिस कर रही है, तो सबसे पहले हमने प्री ऑपरेटिवली जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मरीज़ को, तो उसका क्लॉटिक डिसफंक्शन कर रहे हैं, और अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? रिमूव द सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन, रिमूव द सोर्स ऑफ स्टोन, दैट इज़ गॉल ब्लैडर। तो कोलिडोकोलिथाइसिस में स्टोन सिर्फ निकाल देना CBD से काफ़ी नहीं है, यू हैव टू डू अ कोलिसिस्टेक्टमी। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है? कोलिसिस्टेक्टमी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की ट्रीटमेंट क्या है? ERCP करें, फिर कोलिसिस्टेक्टमी। चारकोट्स ट्रीटमेंट क्या है? पहले एंटीबायोटिक्स दें, इन्फेक्शन को सेटल करें, स्टोन को रिमूव करें और सोर्स ऑफ स्टोन को रिमूव करें, यानी कोलिसिस्टेक्टमी। और रेनॉल्ड्स पेंटार्ड में क्या? बेसिकली पहले शॉक को ट्रीट करें, और शॉक की ट्रीटमेंट में जो फोकस है सेप्सिस का, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, शॉक के ठीक होने का इम्कान कम हो जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट कब आपने करनी है, वो आप ERCP के थ्रू कर सकते हैं, और वो आप CBD के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिकली और ओपन सर्जरी की वजह से। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। देन अनदर कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेनकटाइटिस पे हमने बड़ी तफसील से बात करनी है, हमने अभी भी बात की है। बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ गॉलस्टोन डिजीज़। इसका मेन स्टे ये है कि आपने डायग्नोज कैसे करना है, इन पेशेंट्स को आपने कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है, इनको प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं और उसके हिसाब से फिर डील करते हैं कि आगे क्या करना है। और जब जो गॉलस्टोन पेनकटाइटिस है, जब वो सेटल हो जाए, तो माइल्ड और मॉडरेट पेनकटाइटिस में सेम एडमिशन में कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, और सीवियर पेनकटाइटिस में आप कुछ हफ्ते ठहरने के बाद, ये देखने के बाद कि कोई कॉम्प्लिकेशंस, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई एक्यूट पेनकटाइटिस की, फिर कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। ठीक है जी। गॉलस्टोन आइलियस हमने कहा था कैसे पहुंचता कैसे, इरोड करता है, एक कोलिसिस्टोड्यूडनल फिस्टुला बनाता है। CBD के ज़रिए स्टोन नहीं पहुंचता ड्यूडनम में, इस बात को याद रखें प्लीज़। CBD में स्टोन कभी इतना बड़ा नहीं होता और वो इरोड करके कभी ऐसे ड्यूडनम में नहीं जाता कि वो स्मॉल बॉल को रोक सके। जब आप इसका एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं, डायलेटेड स्मॉल बॉल लूप्स जो टिपिकल स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन की नज़र आते हैं, ट्रीटमेंट वही है, यू नील बाय माउथ कर देते हैं पेशेंट्स को, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, आउटपुट मॉनिटर करते हैं, NG ट्यूब डालते हैं, और अगर ये सेटल नहीं हो रहा तो इनके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी करने में याद रखें आपको एंट्रोटमी करनी है, इंटेस्टाइन को खोलना है, स्टोन को निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो फिस्टुला बना है जो बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड द ड्यूडेनम, उसको भी ट्रीट करना है और कोलिसिस्टेक्टमी भी करनी है। ठीक है, आम तौर पे जो गॉलस्टोन आइलियस का जो डायग्नोसिस है वो ऑन टेबल होता है। जब आप टेबल पे पेशेंट को स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए खोलते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये गॉलस्टोन्स की वजह से। अच्छा, हमने पहले भी कहा था एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो डायबिटिक हैं, क्योंकि उनमें हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक इसलिए कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, या फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज जिनमें मल्टीपल स्टोन्स मौजूद है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अदरवाइज़ एक सिंगल जो कॉम्प्लिकेशन भी है, एक दफ़ा भी बिलियरी कोलिक हुआ है तो उस पेशेंट को आपको ऑफ़र कर देनी चाहिए कोलिसिस्टेक्टमी, क्योंकि उसके सब्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस होने का इम्कान बढ़ता जाता है हर दफ़ा। और वाइल गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। आजकल कोविड के दिनों में चूँकि सेजिस की और इंटरनेशनल गाइडलाइंस अभी ये है कि चूँकि लेप्रोस्कोपी में आप जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं करते, एरोसोल जनरेशन ज़्यादा है, इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का इम्कान है, तो आजकल अब हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी प्रैक्टिस करें, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है फॉर इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी, इवन फॉर इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी। तो व्हाइल योर पेशेंट इज़ वेटिंग फॉर सर्जरी इलेक्टिवली, तो उसको लो फैट डाइट पे रखें। कुछ पेशेंट्स जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और इनके प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो, उनमें डिसोलेशन थेरेपी के कामयाब होने का कुछ इम्कान है, बट जनरली इसका फ़ायदा बहुत कम लोगों को होता है। करना कब है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी वो थी कि इनिशियली सेटल कर लें और फिर 6 से 8 हफ्ते के बाद आप इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करें।
क्योंकि उस वक्त इनिशियली डिसेक्शन मुश्किल है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ स्मॉल बाल आई हुई है, मोमेंटम आई हुई है, तो आपके लिए कैलोस ट्रायंगल को डिसेक्ट करना दुश्वार है. यू कैन कॉज इंजरी टू द कॉमन बाइल डक्ट, यू कैन कॉज इंजरी टू द इंटेस्टाइन्स. इसलिए उस वक्त करने की बजाय ज़रा ठहर के करें जब इन्फ्लेमेशन बैठ जाए. लेकिन अब ये कहते हैं कि विद इन फर्स्ट 72 आवर्स, स्पेशली अगर पेशेंट जो है वो आपके पास एक्यूट के साथ आए तो आप उसकी एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी कर दें. उस वक्त अभी चूँकि पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड होता है, एडीमा होता है, तो डिसेक्शन इतनी दुश्वार नहीं होती. सिमिलरली जो गॉलस्टोन पेनकिटाइटिस के साथ आते हैं, माइल्ड और मॉडरेट में सेम एडमिशन में कर दें, और जो सीवियर पेनकिटाइटिस है उसमें आप कुछ हफ्ते ठहरने के बाद ये कंफर्म करने के बाद कि इनकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं, फिर हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं. कोलिसिस्टेक्टमी ये राइट अपर क्वाड्रेंट, ये इस इंसियन से जो कि कॉकर्स राइट सबकॉस्टल इंसियन के ज़रिए भी किया जा सकता है, या लेप्रोस्कोपिकली क्लासिकल 4 पोर्ट के साथ भी किया जा सकता है. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आप ये देख सकते हैं, दिस गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, इट इज़ फुल ऑफ पस एंड इट इज़ बीइंग एस्पिरेटेड. ये इतना मोटी है इसकी वॉल कि ये ग्रास्पर इसको पकड़ नहीं सकता. सो यू पुट इन एन एस्पिरेशन नीडल, यू एस्पिरेट पस फ्रॉम इट, एंड वंस इट इज़ ये थोड़ा लूज होता है तो फिर इसको आप ग्रास्प कर लेते हैं. उसके बाद हम कैलोस ट्रायंगल के अंदर जो हमने बात की थी डायसेक्शन करते हैं, डायसेक्ट करके ढूंढते हैं कि कहाँ पे है हमारी सिस्टिक डक्ट और कहाँ पे है हमारी सिस्टिक आर्टरी. ये आप देख सकते हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये टी जंक्शन है, ये सिस्टिक डक्ट इज गोइंग इन द गॉल ब्लैडर. रिमेंबर, सिस्टिक डक्ट गोज इन द गॉल ब्लैडर, द सिस्टिक आर्टरी गोज ऑन द गॉल ब्लैडर. और जब आप क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी करते हैं, जब आप कैलोस ट्रायंगल के साथ साथ कोलिसिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल को भी डायसेक्ट करते हैं, एंड देयर आर ओनली देन 2 स्ट्रक्चर्स which are attached to the gallbladder. One is the cystic duct and the other is the cystic artery. इसको कहते हैं potato on 2 sticks. जब ये पोजीशन में आप ले आते हैं गॉल ब्लैडर को, उसके बाद आप क्लिप करते हैं, उसके बाद आप डिवाइड करते हैं. गॉल ब्लैडर सर्जरी का असूल ही है, याद रखें, the anomaly is rule. जो डिफाइंड एनाटमी है वो सिर्फ 30% लोगों में है. इसलिए जब तक आपको 100% यकीन नहीं हो गया कि डक्ट इज़ गोइंग इन द गॉल ब्लैडर एंड आर्टरी इज़ गोइंग ऑन द गॉल ब्लैडर, तब तक आप किसी चीज़ को डिवाइड ना करें, क्लिप ना करें और कॉटरी ना करें. सो जब हमें यकीन हो गया कि यही सिस्टिक डक्ट है तो फिर हम उसको क्लिप करते हैं 2 प्रॉक्सिमल सिस्टिक डक्ट पर. ये देखें, टी जंक्शन को हमेशा छोड़ते हैं क्योंकि ट्रैक्शन की वजह से अगर मैं टी जंक्शन के ऊपर क्लिप लगा दूंगा तो इसमें सीबीडी का कुछ हिस्सा आ जाएगा जो बाद में सब्सिक्वेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा. और एक जो है ना डिस्टल लगाते हैं टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर और तब इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं. एंड देन you remove the gallbladder from its bed. If there are any questions, you can post them to me, and I hope this talk has been useful for you people.